Welcome, my dear friends. Today I'm starting Sociology Past Years Questions series. And this series I'll cover year by year all the questions what UPSC has asked you in previous years. So whether you are beginner or a veteran, this series will definitely sharpen your preparation like never before. So this will definitely help you revise, recall and retain, because we all know that UPSC never repeats the questions, but it does repeat pattern in mains. And to crack this exam, we must understand what the UPSC is asking you, and we should understand the mind of UPSC. And for this, we need to analyze the questions in a way so that whatever the questions they are asking you from this certain topic like sociology as a discipline or sociology as a science, so you should be able to decode the term and totally understand what the examiner is demanding you to answer in this. So we'll try to decode year by year, one by one. We'll try to attempt all the questions. So today I have taken 2015 question paper. So today I've here posted how many, approx I think 10 questions here. So 10 on daily basis we will cover 10 questions, so that we are exam ready by this mains or next mains. Our first question is sociology is a science, or so is sociology science है क्या? Sociology science है. Give reason for your answer. Even if a person who hasn't studied a sociology can easily answer it, but we have studied sociology, we know who is the father of sociology. We will try to answer here in a way. First point intro डालेंगे हम. क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी एज अ साइंस इज डिबेटेड ड्यू टू इट्स सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेटिव नेचर. तो हम इसमें बोल सकते हैं सोशियोलॉजी इज अ साइंस. फर्स्टली इंट्रो डाल सकते हैं इसमें. सोशियोलॉजी इज अ साइंस एंड सोशल कंसेंस लाइक नेचर एंड बायोलॉजिकल साइंस एंड यूजर्स विगरस मेथडोलॉजी. तो ये डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करती हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं सोशल साइंटिस्ट क्लियरली स्टेट्स दैट प्रॉब्लम ही और शी इज इंटरेस्टेड एंड क्लियरली स्पेल्स आउट हाउ ही और शी इज अराइव्स एट दिस कंक्लूजन. तो जनरली हम बोल सकते हैं सोशल साइंटिस्ट ग्राउंड द प्रोसीजर इन बॉडी ऑफ existing literature. So this here, as per who is the father of the sociology, Auguste Comte, the father of sociology, advocated what? For positivism, applying scientific method to study society. So we have quoted thinker here. Next, Comte, Durkheim and Spencer emphasized on what? Objectivity, laws. We have underlined this one. Objectivity, laws and empirical methods akin to nature. These are alike to the natural science. And Durkheim, what did he said? He said in his work, Rules of Sociological Methods. Again, methods. It's a kind of science based. Emphasize that social facts should be treated as things to ensure scientific validity. We have again underlined, or you can put this into the box. Next, however, interpretative sociologists like Max Weber oppose this, arguing sociologies deal with meanings, not just fact. It also deals with meanings, not just fact. Next thing we are saying, Weber proposed Verstehen, like interpretative understanding, highlighting the subjective meaning behind actions. Sociology differs what from natural science. ये different होती है natural science से ड्यू टू किसकी वजह से? रिफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर. एग्जाम्पल डालेंगे यूजिंग ऑफ बिग डेटा. यूज ऑफ बिग डेटा एंड AI इन सोशल बिहेवियर एनालिसिस शोज एम्पेरिकल टेंडेंसीज एंड रिफ्लेक्टिंग अ साइंटिफिक एस्पिरेशन. सो इन कंक्लूजन वी विल से फाइल सोशियोलॉजी aspires to be scientific, it remains distinct due to its humanistic and interpretative dimension. My humanistic and interpretative dimensions may be different. So this is why sociology is different. We can even say, for example, we can take one other example like the statement that Dory is a social level
is a scientific judgment, and sociology is a science which attempt at interpretative understanding of a social action in order to what? In order to arrive at a causal explanation of its causes and effect. So we can, for instance, we can say that sociology is thus much social science like a psychology, economics, political science and other social science concerning men. This is how we are winding up this answer. Next question, discuss the relevance of historical method in the study of society. In this, firstly, what we will do, we will try to decode this question. Discuss the relevance of, we are talking about historical method in the study of society. The historical method is fundamental approach होती है social science की, and including sociology for understanding what? For the understanding societal development and changes, continuity over time, and it even evolves. It even evolves with time, and it or ये context and trends to comprehend the dynamic and shape the contemporary society. This method is crucial for evaluating what? For evaluating societal transformation. हम किस बेसिस पे हम इसको बोल सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं सीधा. फर्स्टली बताएंगे कि historical method involves using past events and processes to understand present social structure and changes. पॉइंटर डाला सीधा डायरेक्टली. सबसे पहले बता दो, द रेलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज वेरी डायनेमिक. It includes social science, which is like understanding societal development, as well as whatever the changes and continuity keeps on going over time. It involves analyzing past experiences, past event, past trends, and it even comprehend dynamics. So we are including everything. Next में आप थिंकर डालो नेक्स्ट पॉइंट में सीधा कि अगस्त कॉम्टे व्यूड सोसाइटी एज इवॉल्विंग. ही हिमसेल्फ व्यूड सोसाइटी एज इवॉल्विंग थ्रू द थियोलॉजिकल, metaphysical and scientific stage. We have given the term theological, metaphysical and scientific stages. Next thinker डालो, Herbert Spencer. Karl Marx also employed historical analysis to understand what? To understand societal evolution and class struggle respectively. So we have mentioned three thinkers up till now. Next thinker quote करो, Max Weber. Max Weber emphasized the role of historical particularism in interpreting meaning behind social action. Historical methods helps what? क्या करते हैं? अब हमने थिंकर 3-4-5 थिंकर डाल दिया आंसर में. नेक्स्ट हम बोलेंगे हिस्टोरिकल मेथड्स हेल्प आइडेंटिफाई कैजुअल रिलेशनशिप. क्या आइडेंटिफाई करने को करता है? कैजुअल रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स ओवर टाइम. एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलेंगे इट एनहेंसेस व्हाट? क्या एनहेंस करता है? इंस्टीट्यूशंस लाइक सोसाइटी. क्या एनहेंस करती है सोशियोलॉजी? फैमिली, रिलीजन, state, and they evolved contextuality. और इस तरह से ये contextuality में evolve कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल colonialism, impact on caste, land ownership pattern in India, and contemporary relevance हम बोल सकते हैं studying historical pandemics like the Spanish flu informed our understanding of COVID-19 social effect. हमने current से भी डाला. नेक्स्ट हम कंक्लूजन करेंगे. हिस्टोरिकल मेथड एनरिचेस सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बाय अडेप्टिंग बाय व्हाट? बाय एडिंग डेप्थ, कंटेक्स्ट, कैजुअलिटी. इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो वहाँ पे अच्छे से. एडिंग व्हाट? डेप्थ, कंटेक्स्ट, कैजुअलिटी टू कंटेम्प्ररी सोशल स्ट्रक्चर, सो दैट एग्जामिनर को ये हाईलाइटेड ऊपर ही दिखे. तो हम एंड में ये भी बोल सकते हैं, दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं लाइक द हिस्टोरिकल मेथड इज अ क्रिटिकल टूल. हिस्टोरिकल मेथड इज अ क्रिटिकल टूल इन सोशियोलॉजी विच अलाउज यू टू कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटल डेवलपमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है सोसाइटल डेवलपमेंट का, जो कि डायनेमिक भी होता है बाय एग्जामाइनिंग हिस्टोरिकल context, events, sociologists and identify patterns, and it even give you utilizing what? Different kinds of methods.
methodology, and ability to address contemporary social issues, inform public policies, foster a deeper understanding and complex and dynamic nature of human society. आपने एक वे फॉरवर्ड डिफरेंट तरह से दे दिया इसका. फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑन हेल्थ केयर सिस्टम कैन इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन टू एनहेंस हेल्थ केयर डिलीवरी. और हम इसको कल्चरल कंटेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी ले सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू विद टाइम इवेंट के साथ में सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, पोटेंशियल है सोसाइटी में एक फ्यूचर इवेंट्स को हैंडल करने का, लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर, रिवॉल्यूशन. अभी करंट में चल रहा है, वॉर चल रहा है, रिवॉल्यूशन चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कहीं कहीं कभी बिजनेस में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन कोरिलेट इन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वेरिएबल्स. अब वेरिएबल क्या होते हैं एंड डिस्कस देयर रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसमें हम लिखेंगे वेरिएबल होते क्या. वेरिएबल क्या है सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज वेरिएबल. जैसे हम 6th 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में आंसर लिखते हैं, सेम वे में उस तरह से सिंपल डिफाइन करो कि वेरिएबल क्या है, व्हाट आर वेरिएबल. क्वेश्चन ने 2 पार्ट दिए हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड डिस्कस देयर रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उनके रोल क्या क्या हैं. फर्स्टली बताओ वेरिएबल क्या है. वेरिएबल्स आर, फर्स्ट पार्ट हो गया, वेरिएबल आर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज दैट कैन वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ओवर टाइम. तो आपने 2-3 कैटेगरी बता दी है, कैसे, इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ओवर टाइम. ये हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स. अब इसके बाद में आप बोलो कि डिस्कस देयर रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अब इनको एक्सप्लेन कर दो. दे आर क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग एंड कंट्रोल वेरिएबल्स. इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड. इनको मैनिपुलेट करना आसान होता है टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. अगस्त कोम्ते एंड डर्कहाइम दे एम्फसाइज्ड ऑन व्हाट, साइंटिफिक मेथड. हमने पिछले वाले में भी देखा साइंटिफिक मेथड, नेक्स्ट में भी देखा साइंटिफिक मेथड, एंड दिस इज हाउ वी आर रिवाइजिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ व्हाट वी हैव डन अगस्त कोम्ते, डर्कहाइम, एंड वेयर वेरिएबल्स आर एसेंशियल बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग. नेक्स्ट लिखो डर्कहाइम सुसाइड वेरिएबल्स लाइक religious affiliation, marital status were studied for correlation with suicide rates. So these are correlated with suicidal rates. Experimental designs help identify causal relationship and hence what, objectivity and allow replication. सो हमने पॉइंटर डाला. पहला बोला कि डेफिनेशन में हमने बताया कि वेरिएबल होते क्या हैं और कितने क्या क्या चीज़ उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है. नेक्स्ट में हमने बोला कि किस तरह की एक्सपेरिमेंट्स हैं जो रिसर्च में हमें इनका रोल क्या क्या है हमने डिफाइन किया. देन वी हैव कोटेड थिंकर, 2 थिंकर यहाँ पर हो गए. नेक्स्ट हमने सुसाइडल टेंडेंसी बताई, एग्जाम्पल क्रिएट किया, करंट एग्जाम्पल दिए. सो स्टडीज जिसमें हम बताएंगे स्टडीज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया यूसेज. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एडोलसेंट एंग्जाइटी डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब सोशल मीडिया का कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एंग्जाइटी इश्यूज आने लगते हैं. आजकल हम देखते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज आते हैं. तो बहुत ही कम एज में सर्वाइकल्स आ रहे हैं, सर्वाइकल के केसेस आने लगे हैं, और एंग्जाइटी इश्यूज बच्चों में यंग एज, एडोलसेंस की एज में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं. दीज ऑल आर व्हाट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आए नहीं कि बस दे आर जस्ट स्ट्रीमिंग, दैट्स व्हाट. एंड वेरिएबल, तो इससे वेरिएबल डिपेंडेंसी क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, वो हो गया आपका एडोलसेंट एंग्जाइटी इश्यूज. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा, सोशल मीडिया यूसेज. हम यूसेज कर रहे हैं सोशल मीडिया का. अब इसके बेस्ट वे भी हो सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया को हम किस वे से ले रहे हैं, पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ रिसर्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. लाइक हम एज अ सोसाइटी स्टडी करना चाहते हैं तो हम सबसे उनके व्यूज़ मांग रहे हैं कि हाँ व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस टॉपिक, सो काइंडली रेट दिस इन दीज टू ऑल थिंग्स. तो उससे क्या हम एक रिसर्च वर्क में हेल्प ले रहे हैं. तो साइंस कैन बी अ बेनिफिट ऑफ फैक्टर, एक ऐसा लूप भी हो सकता है जो आपको एक आगे चल के एक प्रोग्रेस दे सकता है. बट साइंस कैन बी अ कर्स ऑल्सो. सो इसमें हम सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे वेरिएबल एंश्योर साइंटिफिक रिगर एंड क्लैरिटी इन सोशोलॉजिकल
इंक्वायरी। कंक्लूजन करेंगे हम, वेरिएबल्स आर फाउंडेशनल इन एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी। तो वेरिएबल्स क्या है, फाउंडेशनल वैल्यू रखते हैं एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी में, एंड फैसिलिटेट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिविटी एंड कैजुअल इंटरफेस। तो इन वर्ड्स को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे आंसर में। तो हमारा आंसर ना क्रिस्प लगेगा, क्लियर लगेगा। बॉक्सेस में डाल दो इनको, या फिर इसको सीधा सिंपल एक सिंगल अंडरलाइन कर दो, जिससे कि एग्जामिनर को दिखाई देगा कि हाँ इस बच्चे ने ये सब कुछ पढ़ा है ना, चलो ठीक है इसको मार्क्स देते हैं, इसने मेहनत की है, दिख रहा है इसने सारे पॉइंट्स कवर किए। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट कॉन्सेप्ट डिड वेबर यूज टू एनालाइज द फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट डोमिनेशन। तो लेजिटिमेट डोमिनेशन में वेबर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए थे, उनको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैक्स वेबर ने 3 तरह के लेजिटिमेट डोमिनेशन स्टार्ट किए थे, 3 टाइप। फर्स्टली हम बोलेंगे द कॉन्सेप्ट वेबर एनालाइज द फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट डोमिनेशन इन 3 वे, जिसमें हमने लेजिटिमेट डोमिनेशन अथॉरिटी के बेसिस पे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी पे हम बोलेंगे बेस्ड ऑन द कस्टम्स, लाइक एग्जांपल मोनार्की एंड ऑल, मोनार्की रिचुअल्स, ये हमारी क्या है, बेस्ड कस्टम। मैरिज क्या एक तरह का कस्टम है, रिचुअल है कि हाँ हिंदू मैरिज इस तरह से होती है, मुस्लिम मैरिज इस तरह से होती है, दैट्स ऑल अ कस्टम, ठीक है। अब बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटी एग्जाम्पल गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट था, सत्याग्रह, दैट्स बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज। लीगल रेशनल अथॉरिटी बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स, लाइक ब्यूरोक्रेसी के फॉर्मल रूल्स होते हैं कि लाइक इमोशनल, ही शुड बी ethically delivering his duty instead of doing any kind of bias। तो ये क्या है, एग्जाम्पल हमने डाल दिए। तो इससे हमारा आंसर क्या है, थोड़ा रिच लगने लगा। हमने ये डाला टॉपिक, हमने लिखा बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं लिखा है। वी हैव ओनली गिवन व्हाट, एग्जामिनर को सीधा सीधा बोला कि देखो भाई मैक्स वेबर ने ये 3 चीज़ें बताई थी, और इसके बेसिस पे ये थी हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और ये थी हमारी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ये है हमारी लीगल रेशनल अथॉरिटी। उसके बाद हमने बोला कि ही एम्फसाइज किस बेस पे, लेजिटिमेसी पे, एंड द बिलीफ इन द राइट ऑफ रूलर्स टू एक्सरसाइज व्हाट, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए। एंड दीज फॉर्म्स एक्सप्लेन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। और ये तीनों तरह की फॉर्म क्या बताती है, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी के, उनको एक्सप्लेन करती हैं। और इसलिए ये क्या है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इज अनस्टेबल। इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है, ऑफन रूटिनाइज्ड इनटू ट्रेडिशनल एंड लीगल रेशनल फॉर्म में। करंट एग्जांपल हम डालेंगे, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम रिफ्लेक्ट्स लीगल रेशनल अथॉरिटी व्हाइल सम पॉलिटिकल लीडर्स अलाउ ड्रॉ ऑन करिश्मा। इसमें हम नेक्स्ट कोट करेंगे, वेबर का ही बताएंगे, फ्रेमवर्क इज यूजफुल। हम एंड में बोलेंगे वेबर फ्रेमवर्क इज यूजफुल एंड अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट इन पावर स्ट्रक्चर इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंटेक्स्ट। तो वेबर का जो ये मॉडल है, ये पूरी तरह से क्या है, पावर स्ट्रक्चर को भी आराम से स्ट्रेटेजाइज करता है, एज वेल एज मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी ये रेलेवेंट है। कंक्लूजन में बोलेंगे कि वेबर्स टाइपोलॉजी हेल्प्स व्हाट, analyze how authority is legitimized and maintained, offering deep insight into power structure। इस तरह से authority किस तरह से legitimize होती है और maintained होती है, offering क्या offer करते हुए, deep insights into power and structure। This is how we have covered this question completely by mentioning all the dimension of the questions। Next question, no society can either be absolutely open or absolutely closed। Comment। तो यहां हम बोल सकते हैं all societies have some common system, all society have some system of social stratification। तो यहां हम बोलेंगे some societies में एक social stratification होता है, और कैसे होता है, they are generally categorized in एज अ ओपन और क्लोज्ड। कहीं पे ओपन होता है, कहीं पे क्लोजनेस होती है। तो हमने बोला द स्टेटमेंट क्रिटिक्स द बाइनरी व्यू ऑफ सोशल ओपननेस एंड क्लोजनेस। आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि ऑल सोसाइटीज हैव सम सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, दिस मे बी लाइक जनरली ओपन और क्लोज्ड। अ क्लोज सोसाइटी इज वन इन विच इंडिविजुअल
क्या होता है, इंडिविजुअल का रोल एंड फंक्शन क्या होता है, कैन थियोरेटिकली नेवर बी चेंज। उसका थियोरेटिकली कोई इंसान है जिसकी थियोरेटिकली वो उसी चीज़ पे स्टिक होना चाहता है, वो आगे कंटेक्स्ट में प्रैक्टिकलिटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट ही डजंट वांट टू चेंज। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एक क्लोज सोसाइटी में एक इंडिविजुअल अपने फंक्शन, अपने थियोरेटिकल उसी बेस पर लगा रहता है, वो आगे चेंज नहीं करना चाहता उसको। जैसे हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट सिस्टम वो कास्ट सिस्टम ही को फॉलो करता आ रहा है, तो दैट्स व्हाट हिंदू कास्ट सिस्टम, दैट वो क्या है, क्लोज्ड है। वहीं इन ओपन सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू मूव ऑन टू द बिगर हायर क्लासेस। लाइक एक कोई मिडिल क्लास में बॉर्न हुआ है बट उसके एस्पिरेशन हाई हैं, तो वो क्या कर रहा है, अपर मिडिल क्लास में निकल रहा है, फिर उसके बाद में हायर सोसाइटी में निकल रहा है। दिस इज व्हाट ओपननेस। ये क्या बताते हैं, ओपननेस लूप है आपका, जहां पे आप ओपन हो रहे हो। बट एक कोई कास्ट है, सपोज मैं पंडित फैमिली से आती हूँ और मैं आगे पंडित ही हूँ, दैट्स व्हाट कि मेरी कास्ट चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, कुछ भी हो जाए। बट वहीं पे मैं मिडिल क्लास में थी, अब मैं अपर मिडिल क्लास में हूँ, लेटर ऑन आई विल बी एट द हायर क्लास, तो वो क्या हो रही है, मेरी ओपननेस दिखा रही है। सो दिस इज वॉट यू कैन कोट हियर। यहाँ पे बोलोगे दिस स्टेटमेंट क्रिटिक्स दे दिया, अपने क्लोजनेस ओपननेस दे दिया। एन ओपन सोसाइटी ऑफर्स सोशल मोबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, फ्लूडिटी, एग्जाम्पल मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अ क्लोज सोसाइटी रेस्ट्रिक्ट क्या करती है, मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करती है, जहां हमने एग्जाम्पल दे दिया कास्ट बेस्ड और फ्यूडल सिस्टम। नेक्स्ट में हमने बोले डेविस एंड मॉरे को कोट किया। डेविस मॉरे सॉ स्ट्रैटिफिकेशन एज फंक्शनल बट डायनेमिक। उन्होंने बोला कि ये फंक्शनल है बट डायनेमिक है। और बोर्डेज आइडियाज ऑफ कल्चरल कैपिटल एक्सप्लेन क्या करते हैं, हाउ हिडन बैरियर्स persist even in open societies. India's post independence, अब हम बात करेंगे इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस एम्ड फॉर ओपननेस, बट कास्ट एंड क्लास कंटिन्यू टू अफेक्ट द अपॉर्चुनिटीज। बट कास्ट थी, क्लास थी, इन्होंने क्या किया, दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग अफेक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट में हम बोलेंगे रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैव प्रमोटेड मोबिलिटी बट इनइक्वालिटीज रिमेन। बट फिर भी इनइक्वालिटी रिमेन है, आज भी है सोसाइटी में। दस सोसाइटी एग्जिस्ट एज एन स्पेक्ट्रम नॉट अ एक्सट्रीम्स। इसलिए सोसाइटी एज अ स्पेक्ट्रम है, ना कि एक्सट्रीम्स की तरह। तो हम कंक्लूड करेंगे नो सोसाइटी इज परफेक्ट। हम एंड में बोलेंगे नो सोसाइटी इज परफेक्ट, और आगे बताएंगे कि परफेक्टली ओपन, कोई भी सोसाइटी परफेक्टली ओपन या क्लोज नहीं है। ईच हैज सम और अदर मैकेनिज्म ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूडिंग शेपिंग सोशल मोबिलिटी। एग्जाम्पल आज की डेट में मैरिजेस, कास्ट चेंज हो रही है। लाइक अर्लियर आई वॉज born into a पंडित फैमिली, टुडे आई एम into a राठौर फैमिली। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरा कास्ट चेंज हो गया। एंड दिस ओनली हैपन्स इन इंडियन कास्ट सिस्टम में। जनरली ये फीमेल्स के साथ होता है, मेल्स के साथ नहीं होता है। तो हमने इस तरह से इसकी एंडिंग कर दी। तो इस तरह बोलो सो देयर रिलेशन क्या है, इस तरह से कॉम्पिटिटिव हो गया इनका रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट डिस्कस द रोल, वेट अ सेकेंड, दिस 6, 7, 8, 9 and 10 I'll discuss in the evening or in the next lecture. So see you. Up till then, keep revising. Bye bye. Stay healthy. Stay healthy, eat healthy and keep revising. That's your key to success.